Okay, so what do you know about Mother Teresa? Mother Teresa, basically, what I am aware of that, like she did a lot of work for like on the Christian side. She did a lot of work. There are a lot of like conspiracies that what she did for the conversion or something, or she was in favor of Christian. But despite whatever she did, I think she did pretty much good work. That's all I'm aware of. What do you know about Mother Teresa? Mother Teresa, she started the education system for free. She was the first lady to start the education. Okay, so why she was great, basically? She was great because she has started the education system and she brought back so many schools, so many things in India. She was the first lady to bring back to the education. Education now is the most important thing in our India that people are not doing. Most of the countries, most of the regions, you have seen that education is not there. Even in India, education is most important, but some of the people are not giving education to the children. मदर टेरेसा के बारे में पता है? हाँ पता है ना। महान थी वो? हाँ थी ना। क्यों महान थी? वो चैरिटी का काम करती थी या लोगों के लिए काम करती थी, इसलिए वो महान थी। What do you know about Mother Teresa? She was a great lady. Why she was great? She was doing so many charity and all. Okay. So what do you know about Mother Teresa? So talking about Mother Teresa, I guess she feeded a lot of students, and her motive was to finish child hunger. And yeah, I guess she did a very good thing, and she actually made a difference in society by doing that, because it shows the world that you can help orphans and unprivileged kids and make world a better place to live. So, we went around the country and asked people these very simple questions and you saw their responses. ये हमारी सोसाइटी के educated लोग हैं. These testimonials are evidence enough to show that we have no clue why we have made up our minds this way about Mother Teresa. मतलब वो बहुत महान है ये पता है, पर क्यों महान है वो नहीं पता. Mark Twain once said, "Give a man a reputation as an early riser and he can sleep till noon." आलोचकों का कहना है कि मदर टेरेसा गरीबों की नहीं, गरीबी की दोस्त थी. Was she really so great as we have been made to believe? Let me give you some lesser known and not so popular historical facts about her and her missionary organization and some of their peace projects. Welcome to the new episode of Breathing History. तो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में देखा कि लोगों को ये महान मोटे तौर पे दो कारणों से लगती है. पहला कि उनको नोबेल प्राइज़ मिला है और कुछ अन्य अवार्ड्स, और दूसरा उन्होंने गरीब और अनाथ बच्चों के लिए कितना कुछ किया है. आइए जानते हैं ये दोनों पॉइंट्स के पीछे की कहानी. नोबेल प्राइज़ क्यों मिला? हार्ड टू टेल एग्जैक्टली व्हाई शी गॉट दिस अवार्ड. और जब आप देखेंगे कि ये किन लोगों के साथ उठती बैठती थी तो शायद नोबेल प्राइज़ मिलने का कारण दिखे. तो कौन थे वो लोग जो इनकी चैरिटी को इतने बड़े बड़े डोनेशंस देते थे? उनमें से कुछ प्रोमिनेंट लोग थे. बेबी डॉग डुवेलियर फ्रॉम हेटी, जिन्होंने हज़ारों लोगों का नरसंहार किया है. या फिर चार्ल्स कीटिंग, जो कि $124 बिलियन स्कैम के जिम्मेदार है. मदर टेरेसा यूएस में तो कीटिंग के ही जेट में घूमती थी, जो इनकी चैरिटी को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का डोनेशन करता था. तो क्या इतने पावरफुल लोगों की सिर्फ लॉबिंग से नोबेल प्राइज़ मिल जाता है? मे बी नॉट. बट देन व्हाट एल्स डिड शी डू दैट मेड हर सो ग्रेट? दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट. शी डिड अ लॉट फॉर पुअर एंड ऑर्फन्स. दिस वन इज़ माई फेवरेट. अरे उन्होंने गरीबों और बच्चों के लिए बहुत किया है. अगर उन्होंने कुछ बहुत किया है तो हमारे देश और कोलकाता को वेस्टर्न कंट्रीज़ के सामने बदनाम किया है. एक ख़राब और डाउनग्रेडेड इमेज बनाई है, वो भी उन लोगों के सामने जिनको लगता था कि कुछ डॉलर्स इधर उधर डोनेट करने से वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की हेल्प कर रहे हैं. वो ये भूल जाते हैं कि जो पैसा वो डोनेट कर रहे हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमारे ही देश से लूटा या चोरी किया गया है. सो बैक टू माई पॉइंट अबाउट हर ग्रेटनेस. क्या वो महान इसलिए थी कि छोटे छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट करके मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, या फिर इसलिए कि टीबी या लेप्रेसी या कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ रहे बच्चों का इलाज भी नहीं कराया जाता था, ये कह के कि दिस इज़ गॉड्स विल? या इसलिए महान थी कि जब नीडल्स यूज़ करते थे तो उसे ठंडे पानी से धोते थे
या कभी कभी तो रीयूज़ कर लेते थे, स्टेरलाइज करना तो दूर की बात। बिना ट्रेनिंग दिए वॉलंटियर्स और नर्सेस को बीमार बच्चों के इलाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती थी। उनकी महानता इससे ही पता चलती है कि उनकी बोर्डिंग स्कूल में टीचर एक 6 साल के बच्चे को पनिशमेंट देने के लिए गरम चाकू से उसके हाथ की स्किन जला देती है और फिर कैंची से वो जली हुई स्किन काट देती है, और उसके बाद ये कहते हैं कि ये तो भगवान की मर्जी है, विल ऑफ गॉड। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो ये सब चैरिटी के नाम पे साल के $30 मिलियन से खुद की जेब भर रही थी। यप, $30 मिलियन, इतना सालाना डोनेशन आ रहा था उनकी चैरिटी को। तो ये मेरी प्रॉब्लम है कि ये सारा पैसा बच्चों तक क्यों नहीं पहुंच रहा था। ये करप्शन नहीं है क्या? मुझे आज एक बच्चा बता दो जिसको इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने बचाया हो। मतलब अगर ये मिशनरी ऑफ चैरिटी नहीं होती तो वो बच्चा मर जाता। नहीं मिलेगा कोई बच्चा, क्योंकि कभी कोई ऐसा था ही नहीं। सिर्फ कन्वर्ट किया गया बच्चों को और मरने को छोड़ दिया गया। तो भाई $30 मिलियन सालाना कहाँ गए अगर बच्चों तक नहीं पहुँचे तो? तुमको 57 लाख रुपए इंडियन रुपीस रोज़ के मिल रहे हैं और तुम बेचारे बच्चों को अनस्टेरलाइज नीडल्स लगा रहे हो। And then you have the audacity to call this a will of God? Shame on you. We request all the parents out there to be cautious and conscious about the schools their kids go to. Expensive है तो अच्छा ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं। Expensive convent school का मतलब है आप forced conversion business को ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। And yes, it is a business. The quality of education is very important. It's important who the kid is taught to look up to. Some people in the video were also asked about Sindhu Tai Sabkar, who died this year on 5th January. She adopted 1,500 kids. Do watch our episode on her. Let's all make sure our kids look up to someone like Sindhu Tai and not someone who is just so blinded by some ideology that she chooses to ignore the suffering right in front of her. Jai Hind, Jai Bharat.